Good morning, students. Today we will read your second chapter. The name of the chapter is The Adventure of Toto. This chapter is based on Toto. Toto is a monkey, little monkey, and the author of this story is Ruskin Bond. Ruskin Bond actually has written most of the stories for children, and this story is also for the same. In this chapter, there is a monkey, baby monkey named Toto, and he was mischievous or docile. This you will read in this story. This story is based on the life of Ruskin Bond and his grandfather and Toto. Toto was kept as pet, but what happened to him that you will read in this story. And how Toto was bought and how he was kept that is described in the story. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब ऐसा बताया गया है कि रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर जो एक टोंगा ड्राइवर से टोटो को 5 रुपीज़ में खरीदते हैं। टोटो एक बेबी मंकी है। टोंगा ड्राइवर उस लिटिल रेड मंकी को फीडिंग ट्रफ के पास बांध कर रखता था, मतलब जहाँ वो हॉर्स वो खाता है वहीं पर मंकी को भी बांध कर रखता था। मंकी वह ग्रैंडफादर की तरफ देखने लगा और ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि अपने प्राइवेट जू में वह इस लिटिल रेड मंकी को रखेंगे। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Toto एक प्रेटी मंकी था। उसका आइज बहुत ही ब्राइट, एकदम चमकीला था और देख के लगता था शरारत उसके भीतर छुपा हुआ है। उसका दांत एकदम पल्स जैसे वाइट था, लेकिन किसी भी एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो भी उसे देखती वह सब उसे देखकर डर जाती, ऐसा उसका लुक था। His hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks. अब ऐसा बताया गया है कि टोटो का जो हैंड्स था वह जैसे लगता था कि बहुत दिनों से धूप में घूमने के कारण सूख चुका था, लेकिन फिर भी उसका फिंगर जो था बहुत ही तेज था, शरारत करने के लिए वो तैयार था और उसका पूंछ उसे बहुत अच्छा लुक देता था। ग्रैंडफादर ऐसा बिलीव करते थे कि उसका जो टेल है, पूंछ, वो उसके लिए थर्ड हैंड का काम करता है और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर घूमने के लिए वह अपने टेल का इस्तेमाल किया करता था। It was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. जो भी अपने हाथ से वो काम नहीं कर सकता था, उस पर्पस के लिए वो अपने पूंछ का भी इस्तेमाल किया करता था। Grandmother always wished when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particularly good mood. अब ग्रैंडमदर हमेशा गुस्सा आती थी जब भी ग्रैंडफादर न्यू एनिमल लेकर के आते थे या न्यू बर्ड लेकर के आते थे। इसलिए ऐसा डिसाइड किया गया कि टोटो को सीक्रेटली रखा जाएगा, जब ग्रैंडमदर अच्छे मूड में होगी तब उसे दे दिया जाएगा। Grandfather
and I put him away in little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. अब ऐसा बताया गया है कि रस्किन बॉन्ड और उनके ग्रैंडफादर दोनों उसे एक छोटे से रूम में ले जाते हैं, उनके बेडरूम वॉल के जस्ट सामने, और उसे अच्छे तरीके से बांध दिया जाता है। उसे पेग में दीवार में एक लकड़ी या कांटी ठोक करके और उसमें टोटो को बांध दिया जाता है। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, he found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कुछ घंटों के बाद जब ग्रैंडफादर और रस्किन बॉन्ड दोनों आते हैं टोटो को निकालने के लिए, तो देखते हैं कि जो दीवार सब डेकोरेट किया गया था अच्छे पेपर से, वह दीवार बिल्कुल ही खाली दिख रहा था। अब सिर्फ ब्रिक और प्लास्टर ये दिख रहा था, और टोटो बिल्कुल ही पेपर को फाड़ दिया था। इसके अलावा जो वॉल में जो पेग था, मतलब उसे बांध कर रखा गया था, वह भी उस पेग को उखाड़ दिया था। और रस्किन बॉन्ड का स्कूल ब्लेजर जो वहाँ टंगा हुआ था, वह टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया गया था। वाज इन श्रेड्स मीन्स पीसेज। अब रस्किन बॉन्ड सोच रहे थे कि उनकी दादी माँ क्या कहेगी, दादाजी क्या कहेंगे। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन ग्रैंडफादर को थोड़ा भी टेंशन नहीं हुआ और टोटो के परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे वो, और बोलते हैं ही इज़ वेरी क्लेवर। If given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अब ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वो बहुत ही क्लेवर मंकी है। अगर उसे टाइम मिलता तो निश्चित ही उस ब्लेजर के फटे हुए टुकड़े को बांध करके रस्सी बना लेता और वो विंडो से भाग जाता। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together: a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. अब ऐसा बताया गया है कि अभी तक उसे सीक्रेट रखा गया था, मीन्स ग्रैंड मदर को अभी तक बताया नहीं गया था। अब टोटो को एक बड़े से केज में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो सर्वेंट के क्वार्टर्स में था, जहाँ बहुत सारे एनिमल्स रहा करते थे। इसमें 1 टर्टवाइज, 2 रैबिट्स, ए टेम स्क्विरल एंड गोट, ये सभी थे। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ द कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। अब ऐसा था कि किसी भी एनिमल को वो रात में सोने नहीं दिया, जिस कारण से ग्रैंडफादर अब वह अपना पेंशन लेने के लिए जा रहे थे देहरादून के सहारनपुर में। अब वो डिसाइड करते हैं कि मैं टोटो को साथ ही ले चलूँगा, क्योंकि जब छोड़ते तो कोई भी एनिमल को रात भर सोने देता नहीं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. अनफॉर्चुनेटली रस्किन बॉन्ड अपने ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर जा नहीं पाए, लेकिन जब ग्रैंडफादर लौट करके आते हैं तब उस जर्नी के बारे में बताते हैं कि क्या हुआ। अब उस जर्नी में जाने से पहले एक बड़ा सा ब्लैक कैनवास किट बैग टोटो को प्रोवाइड किया गया। उस बैग के बॉटम में स्ट्रॉ रख दिया गया, क्योंकि वह नया नया बनवाया गया था, नीचे में वो बैठ सके इसके लिए। जब उसके बाद बैग बंद कर दिया गया तब वो बाहर भाग नहीं सकता था, यहाँ तक कि बैग का जो ओपनिंग था वहाँ तक भी टोटो का हैंड पहुँच नहीं सकता था। इसके अलावा उसका जो कैनवास था, क्लॉथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो अपने दांत से वो काट नहीं सकता था।
His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on Dehradun railway platform. अब देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब उतरते हैं तब वो बैग को इधर उधर उसमें जंप करता, जिस कारण से लोग को मालूम चला कि उसमें कुछ है। टोटो सहारनपुर तक वो बैग में रहा। उसके बाद ग्रैंडफादर को बोला गया टिकट दिखाने के लिए। टोटो अचानक ही अपने हेड को वो बाहर निकाल लिया और वह टिकट कलेक्टर के ऊपर देख करके वो हंसने लगा। अब है गया कि द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू grandfather's annoyance he said, sir, you have a dog with you, you have to pay for it accordingly। तो टिकट कलेक्टर ने कहा कि सर, आपके बैग में एक डॉग भी है, आपको उस डॉग का भी पे करना पड़ेगा। अब ग्रैंडफादर टोटो को उस बैग से बाहर निकालते हैं और देखते हैं, बोलते हैं डॉग नहीं है, यह मंकी है। लेकिन टोटो को डॉग जैसा मान लिया गया, जस्टिफाई किया गया कि उसका साइज़ भी डॉग जैसा ही है और 3 रुपया उसके भाड़ा के रूप में डिमांड किया गया और ग्रैंडफादर 3 रुपया दे देते हैं। तब ग्रैंडफादर आगे बढ़ने ही वाले थे कि अपने पॉकेट से एक टॉर्टॉइज निकालते हैं और टिकट कलेक्टर से पूछते हैं, मुझे इस टॉर्टॉइज का कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो टिकट कलेक्टर ने कहा कि सर, इसका कोई भाड़ा नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है, इसलिए फ्री है, नो चार्ज। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट story we'll read in next part. Thank you.